ہم بات کر رہے ہیں فروری 2026 میں شروع ہونے والی ایران جنگ کی۔ کس طرح دہائیوں سے سلگتی ہوئی ایک سرد جنگ محض چند گھنٹوں کے اندر ایک ایسے خوفناک تصادم میں بدل گئی جس نے مشرق وسطیٰ کا پورا نقشہ ہلا کر رکھ دیا۔ صحیح، اور یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔ ہم ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جس کی لہریں عالمی معیشت، انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے اور سفارتکاری کے ہر ستون سے ٹکرائیں۔ اس ساری صورتحال کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں واقعات کی کڑیاں ملانی ہوں گی، اور اس کے لیے جنوری 2026 کا پس منظر بہت اہم ہے۔ میں جب ان آرٹیکلز کو پڑھ رہی تھی تو اس میں جنوری کے معاشی مظاہروں کا ذکر بار بار آ رہا تھا۔ جی، وہ مظاہرے جو ایران کے اندر ہو رہے تھے۔ ہاں، ایران کے اندر عوام سڑکوں پر تھے اور حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری تھا۔ بظاہر تو یہ اندرونی معاشی بحران لگ رہا تھا، لیکن سورسز کے مطابق اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیرونی حکمت عملی کام کر رہی تھی، اور وہ حکمت عملی روایتی عسکری حملوں سے بہت مختلف تھی۔ دراصل اس جنگ کا آغاز ہتھیاروں سے نہیں بلکہ معاشی دباؤ سے کیا گیا تھا۔ امریکی ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ کا ایک انتہائی اہم دعویٰ سامنے آیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے جان بوجھ کر ایک ایسی پالیسی اپنائی جس سے ایران کے اندر ڈالر کی شدید ترین قلت پیدا ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی کرنسی یعنی ریال کی قدر زمین پر آ گئی۔ مطلب لوگوں کی جمع پونجی کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی؟ بالکل، اور جب مہنگائی آسمان کو چھونے لگی تو معاشی مجبوریوں نے عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جدید دور میں معاشی جنگ کی ایک بہت بڑی مثال تھی جس نے زمین کو ایک بڑے تصادم کے لیے ہموار کیا۔ یہ تو ایک محاذ ہو گیا، لیکن اسی دوران ایک اور محاذ پر سفارتی سرگرمیاں بھی عروج پر تھیں۔ عمان والے مذاکرات۔ جی، فروری کے اواخر میں عمان کے دارالحکومت مسقط میں جوہری مذاکرات ہو رہے تھے، اور رپورٹس پڑھتے ہوئے جو چیز مجھے سب سے عجیب لگی وہ ان مذاکرات سے آنے والے بیانات کا تضاد تھا۔ وہ واقعی بہت حیران کن تھا۔ ہاں، مطلب ایک ہی کمرے سے نکلنے والے دو مختلف ممالک کے نمائندے بالکل متضاد باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ سفارتی دنیا میں دیکھیں ایسا تضاد بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی تھے جو ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کا بیان انتہائی پر امید تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو صفر کرنے پر رضامند ہو گیا ہے، کہ امن کا معاہدہ بس ہونے ہی والا ہے۔ جی، لیکن عین اسی وقت امریکی ایلچی سٹیو وٹٹکاف کا جو بیان سامنے آیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وٹٹکاف کے مطابق ایران نہ صرف افزودگی کو اپنا حق قرار دے رہا تھا بلکہ مبینہ طور پر اس بات پر فخر کر رہا تھا کہ ان کے پاس 460 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے، جس سے 11 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ سفارتی کوششیں دراصل ناکام ہو چکی ہیں اور طوفان کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ طوفان 28 فروری 2026 کو پوری شدت کے ساتھ آ گیا۔ ویکیپیڈیا آرٹیکل کے مطابق اس دن ایک انتہائی مربوط فوجی کارروائی کا آغاز ہوا جسے دو مختلف نام دیے گئے۔ ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اسی مشترکہ کارروائی کو آپریشن رورنگ لائن کا نام دیا گیا۔ اس حملے کا سکیل اتنی بڑی تھی کہ سن کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ اعداد و شمار واقعی خوفناک ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسرائیل نے صرف 24 گھنٹوں کے اندر 1200 سے زائد بم گرائے۔ یہ کوئی معمولی فوجی حملہ نہیں تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ ان حملوں کی ٹائمنگ اور انٹیلیجنس کی درستگی کس قدر غیر معمولی تھی۔ عسکری حکمت عملی کو اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر اس طرح کے بڑے فوجی حملے رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ بالکل، لیکن یہ حملے دن کے اجالے یعنی ڈے لائٹ میں کیے گئے۔ یہ دشمن کو ایک واضح پیغام تھا کہ ہمیں تمہارے دفاعی نظام کی کوئی پرواہ نہیں، اور سب سے بڑی کامیابی ان کی انٹیلیجنس کی تھی۔ وہ جو تہران والا حملہ تھا؟ جی، انہیں بالکل درست معلوم تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی اور دیگر اعلیٰ حکام اس وقت کہاں موجود ہوں گے۔ انہیں دن کے اجالے میں تہران کے مرکز میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دفتر کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہی حملے میں؟ ہاں، اس ایک حملے میں خامنائی اور کئی دیگر اہم ترین شخصیات کی موت واقع ہو گئی، جس نے ایران کے پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب کسی ملک کی اعلیٰ ترین قیادت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ جواب تو آنا تھا، اور ایران نے اپنے رد عمل میں کوئی تاخیر نہیں کی۔
ऑपरेशन ट्रू क्रॉस 4। जी, सोर्सेस के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू क्रॉस 4 के नाम से जवाबी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की एक बारिश कर दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसराइल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इन हमलों का दायरा खलीजी ममालिक तक फैला दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब तक। हाँ, और कतर, बहरीन, कुवैत, जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद थे, वहाँ मिसाइल दागे गए। इससे तो ऐसा लगा जैसे पूरा मशरक़ वुस्ता ही जंग की लपेट में आ गया हो। बिल्कुल, और इस जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बहुत अहम चीज दुनिया के सामने आई, और वो थी ईरानी क़यादत के अंदर की गहरी दरार। सदर और पासदारान इनकलाब के दरमियान। जी, ये बात सोर्सेज में बहुत वाज़ेह है कि हमलों के दौरान ईरानी सदर मसूद पश्तसियान ने बाकायदा खलीजी ममालिक से राब्ता किया, उन हमलों पर माफ़ी मांगी और वाज़ेह हुक्म दिया कि पड़ोसी ममालिक की सरजमीन पर ये हमले फौरी तौर पर रोके जाएं, ताकि जंग खित्ते में ना फैले। लेकिन दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने सदर के इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया और मिसाइल हमले जारी रखे। इससे साबित हो गया कि इतने बड़े बहरान के वक्त फैसला साजी का निज़ाम बिखर चुका था। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान दो ऐसे अस्करी वाक़यात पेश आए जिनकी मिसाल जदीद तारीख में नहीं मिलती। पहला वाक़या फ़िज़ा में हुआ और दूसरा समंदर की गहराइयों में। आप F-35 और आब्दूज़ वाले वाक़यात की बात कर रही हैं? हाँ, मैंने पढ़ा कि एक इजरायली तैयारे ने डॉग फाइट में पहली बार किसी जंगी जहाज़ को गिराया, और समंदर वाले वाक़े का ताल्लुक तो दूसरी जंग अजीम से जा मिलता है। ये दोनों वाक़यात अस्करी लिहाज से इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं? ये दोनों वाक़यात दरअसल अस्करी टेक्नोलॉजी के इर्तिका को समझने के लिए बहुत अहम है। फ़िज़ा की बात करें तो एक जदीद तरीन इसराइली F-35 तैयारे ने डॉग फाइट में ईरान के रूसी साख्ता YAG-130 तैयारे को मार गिराया। इंसान बरदार तैयारे को? जी, F-35 को आमतौर पर स्टेल्थ यानी छुपकर दूर से हमला करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जदीद तारीख का पहला मौका था जब इस तैयारे ने आमने सामने की फ़िज़ाई लड़ाई में किसी इंसान बरदार जहाज़ को तबाह किया। और वो समंदर वाला वाक़या? समंदर की बात तो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन थी। बहरे हिंद में अमरीकी आब्दूज़ USS शार्लेट ने एक ईरानी बहरी जहाज़ IRIS दना पर टॉर्पीडो फायर करके उसे तबाह कर दिया, जिसमें 104 अहलकार मारे गए थे। बिल्कुल। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला मौका था जब किसी अमरीकी आब्दूज़ ने इस तरह बराह रास्त जंगी हालत में किसी बहरी जहाज़ को तबाह किया हो। और ये जंग सिर्फ समंदर या हवा तक महदूद नहीं रही, इसका फैलाव बहुत तेजी से हुआ। लुबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिए। कब्रस का महाज भी खुल गया। जी, इधर कब्रिस में मौजूद बरतानवी फ़ज़ाई आडों पर ड्रोन हमले किए गए, क्योंकि ख्याल किया जा रहा था कि वहाँ से अमेरिकी तैयारे उड़ान भर रहे हैं। तुर्की की फ़िज़ाई हुदूद का जिक्र भी सोर्सेस में है, जहाँ नेटो के डिफेंस सिस्टम ने एक ईरान में एक इंतहाई मशहूर नमाज और कैलेंडर की ऐप है जिसका नाम बात सबा है। हाँ, इस ऐप के सर्वर्स हैक हो गए। हैकर्स ने इसके जरिए करोड़ों ईरानी सार्फिन के मोबाइल फोन्स पर बगावत के पैगामात भेजे। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ईरान के अंदर इंटरनेट की रसाई गिरकर सिर्फ 4% तक रह गई। एक तरफ आसमान से बम बरस रहे हैं और दूसरी तरफ मालूमात का मुकम्मल ब्लैकआउट। अपना तौर पर रोम स्टैट्यूट की खुली खिलाफ वर्जी है। सुनने वालों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि रोम स्टैट्यूट क्या है। रोम स्टैट्यूट दरअसल वो बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसके तहत आलमी फौजदारी अदालत कायम की गई है। इस कानून के तहत स्कूलों या हस्पतालों को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। और नुकसान सिर्फ एक तरफ नहीं था, अमरीकी और इसराइली अफवाज को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जी, कुवैत में एक ही ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। और इसराइल के अंदर भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरे। सोर्सेज खास तौर पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का जिक्र करते हैं। इन बमों की वजह से इसराइल में 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और इस तबाही में सकाफती विरसा भी मलबे का ढेर बन गया। गुलिस्तान पैलेस वाला नुकसान। जी, तेहरान में यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा गुलिस्तान पैलेस और इस्फहान की तारीखी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो ये जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तसादुम ने दुनिया के दूसरे कोने में बैठे आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर डाला। आलमी मार्केट पर असरात? बिल्कुल। जंग शुरू होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें $114 फी बैरल की सतह उबूर कर गईं।
आबनाए हुर्मुज़, जिसे तेल की तरसील की शहरक माना जाता है, वो बंद हो गई। जिसका मतलब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग जाना। जी। तेल तो फिर भी एक रिवायती मुआशी पहलू है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले पर हुई। मुत्तहिदा अरब अमीरात में ईरानी ड्रोन हमलों ने अमेज़न वेब सर्विसेज के 3 बड़े डेटा सेंटर्स तबाह कर दिए। AWS के डेटा सेंटर्स। हाँ, आज की दुनिया में अमेज़न पर ही आधे से ज्यादा इंटरनेट चल रहा है। जब वो तबाह हुए तो मशरिक वुस्ता में क्लाउड सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बैठ गईं। कंपनियों का डेटा उड़ गया, ऑनलाइन कारोबार महफूज होकर रह गया। ये जदीद जंग का एक नया चेहरा था, जहां आप दुश्मन की मौशियत को डिजिटल सतह पर मफलूज कर देते हैं, और इस बहरान को मजीद हवा दी हौसियों ने। यमन से? जी, उन्होंने बहरिया अमर में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की धमकियां देना शुरू कर दी। माहिरीन की रिपोर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सप्लाई चेन के रास्ते बंद रहने से पूरी दुनिया एक खतरनाक के साथ बाजारी का शिकार हो सकती है। मतलब बेरोजगारी और महंगाई का नया तूफान। अब जरा अमरीकी सियासत का जिक्र करते हैं। सोर्सेज में मौजूद दाएं और बाएं बाजू की रिपोर्ट्स को अगर हम बिल्कुल गैर जानिबदारी से देखें तो हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, बस ये देख रहे हैं कि डेटा क्या बता रहा है। सियासत में काफी तकसीम नजर आई। इस जंग के हवाले से अमरीकी क़यादत में शदीद इख्तिलाफात थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को देखा जाए तो उनमें वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां नजर आती हैं। पहले उनका कहना था कि मकसद सिर्फ ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत साजी का मौका देना है, और फिर उन्होंने अपना मौकिफ बदला। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हदफ ईरानी हुकूमत की गैर मशरूत खुद सपुर्दगी है, और इसके साथ ही उनका बयान आया कि वो वेनेजुएला की तर्ज पर ईरान के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और यही वो बयानात थे जिनकी वजह से अमरीकी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ। डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का सहारा लिया। ये जंगी इख्तियारात महदूद करने वाला कानून है ना? जी, ये कानून सदर के जंगी इख्तियारात को महदूद करता है और कांग्रेस को ताकत देता है कि वो बैरूनी फौजी कार्रवाई रोक सके। उन्होंने जंग रुकवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो करारदाद कामयाब न हो सकी। ये बहस सिर्फ अमरीकी सियासत तक महदूद नहीं रही। बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन ने भी बहुत गहरे सवालात उठाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो इस पूरे हमले को ही गैरकानूनी करार दे रही हैं। उनका इस्तदलाल क्या था? ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस बहस का मरकज़ प्रिवेंटिव स्ट्राइक या पेशगी हमले का तस्वुर है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क महज शक की बुनियाद पर हमला नहीं कर सकता कि कोई मुस्तक़बिल में खतरा बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ क्या था? उनके खुसूसी नुमाइंदों का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ईरान की जानिब से कोई फौरी हमला नहीं होने वाला था, जिसको रोकने के लिए इतनी तबाहकुन जंग छेड़ दी जाए। इसलिए ये हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। और ईरान के अंदरूनी मंजरनामे को देखें तो अली ख़ामनेई की मौत के बाद निज़ाम को बचाने के लिए फौरी तौर पर उनके बेटे मुज्तबा ख़ामनेई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया, ताकि इक़्तिदार पर कंट्रोल बरकरार रहे। तो अगर हम इन तमाम ज़राए, रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ का खुलासा करें तो हम देखते हैं कि महज एक हफ्ते के मुख्तसर अरसे में मशरिक़ वुस्ता में एक बेपनाह तबाही मची। मुल्कों की सरहदें धुएं में गुम हो गईं, हज़ारों जानें ज़ाया हुईं, डेटा सेंटर्स खाकस्तर हो गए। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के दौर में जंग सरहदों तक महदूद नहीं रहती। खलीज में गिरने वाला मिसाइल दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान को मुआशी तौर पर तबाह कर सकता है। ये मुस्तकबिल की हमागीर जंगों की एक झलक थी। हम एक ऐसे पहलू पर करेंगे जो मुझे सोर्सेज पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा। क्या कोई यकीन करेगा कि इस जंग के दौरान डिजिटल दुनिया में कुछ लोग इस पर शर्तें लगा रहे थे? पोली मार्केट वेबसाइट पर? जी, पोली मार्केट जैसी ऑनलाइन क्रिप्टो बैटिंग वेबसाइट्स पर नामालूम जुआरियों ने करोड़ों डॉलर की शर्तें लगाईं। शर्तें इस बात पर नहीं थी कि कौन जीतेगा, बल्कि इस पर थीं कि कितने मिसाइल फायर होंगे और कितनी अमवात होंगी। ये वाकई बहुत हौलनाक है। इन लोगों ने दूसरों की मौत के आदादोशुमार पर पेशगोइयां करके करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। ये चौंका देने वाली हकीकत है कि आज के दौर में खून रेजी कुछ लोगों के लिए महज मुनाफा बख्श खेल बन चुकी है। कोई भी इस अखलाकी पहलू पर खुद मजीद तहकीक कर सकता है। आज की इस नशिस्त में बस इतना ही।